Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing top 25 MCQs from the topic properties and preparation in chemistry. Okay, so let's get started with the class. So here comes the first question. Which of the following statement is or are true? You need to find the correct or the true statement. Air expands on heating. The warm air is heavier than the cold air. इसमें कौन सा statement correct है? So the correct answer is C. Okay, we know that only the first statement is correct because when we heat air, it expands. Okay, लेकिन जो warm air होती है वो heavy नहीं होती cold air से. It is actually lighter than cold air. Okay, it is lighter than cold air. Lighter का मतलब वो less dense हो जाएगी. ठीक है, लेस डेंस कैसे हुई? लेस डेंस इसलिए हुई बिकॉज जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स को हीट सप्लाई किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके, दे गेन द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो द मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट. ओके, so they bump into each other and they will going to use more space for the motion. ठीक है, तो since they are using more space, वो उनको और space चाहिए motion के लिए. ठीक है, right? So they become less dense or lighter. Okay, तो इसीलिए जो warm air होती है that is lighter than the cold air, not heavier. So the second statement is wrong here. Moving to the next question, which of the following is not a characteristic of gas? इसमें से gas की characteristic क्या नहीं है? Exerts pressure equally in all directions, low compressibility, low density, more than one of the above. Yes, you need to find which is not a characteristic of a gas. Okay, so let's check. Okay, low compressibility, it is not a characteristic. Okay, तो जो gases होती हैं आपको पता है उनके जो जो molecules हैं, right? Okay, जो gases के जो atoms हैं, molecules हैं, okay, तो उनके बीच में काफी स्पेस होता है, राइट? सो दे आर गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, तो गैस पार्टिकल्स के बीच में वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ओके, एंड दे विल गोइंग टू रैंडमली मूव हियर एंड देयर एक्सर्टिंग प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. आपको पता है अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें, सॉलिड के एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ओके, राइट? एंड लिक्विड में उससे कम होता है. सबसे जो वीक होता है अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज इन गैस पार्टिकल्स. ओके, सो लो कंप्रेसिबिलिटी, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस. ओके, now moving ahead to the next one. Air is considered to be an element, a mixture, a solvent, a compound. Yes, तो air क्या होता है? एलिमेंट है, मिक्सचर है, सॉल्वेंट है या कंपाउंड है? Yes, this needs to be very clear. Okay, कि air को क्या हम consider करते हैं? So air is considered to be a mixture. Okay, air में different gases present हैं, dust particles present हैं in our like the dust particles, the different gases that are present in our surroundings. So the air is generally the mixture of all of these things, right? Next question. Which of the following gases is lighter than air? Okay, air से किसकी density कम है, lighter है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया और क्लोरीन. यस, लाइटर दैन एयर इज अमोनिया. ओके, जो वेपर डेंसिटी होती है अमोनिया की दैट इज 8.5 एंड फॉर क्लोरीन इट इज 35.5. HCl के लिए 18.25 एंड ऑक्सीजन इज 16. ओके, सो यस, द वेपर डेंसिटी फॉर अमोनिया इट इज लेस दैन एयर. ओके, सो इट इज लाइटर दैन एयर. ओके, नेक्स्ट. So the formula for vapor density is molecular weight by 2. Okay, you will going to get the vapor density. Okay, what is the number of isotopes of hydrogen? Hydrogen के कितने isotopes होते हैं? 1, 5, 3 or more than one of the above? Yes, so the correct answer is 3. Okay, so isotopes of hydrogen are protium, deuterium and tritium. जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के क्या क्या नाम है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन? ओके, तो आपको बताना है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से क्या करेक्ट है हाइड्रोजन के लिए? ओके, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस.
हाइड्रोजन कैन नॉट बी कोरोसिव, ड्यूट्रियम इज अनदर नेम फॉर हेवी हाइड्रोजन। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की बता रहा है? यस, okay, so more than one of the above is correct here. Okay, so like hydrogen can be corrosive, okay, right, at elevated temperature and pressure. Okay, so yes, like there is first and third, these two are correct. Okay, right? Okay, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है? तो देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी, उसके उसका कलर क्या है एंड व्हाट रिएक्शन इट गिव्स, सिमिलरली विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन, लैब मेथड आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर? इट इज कलरलेस। ओके, सो हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, कोई ओडर या स्मेल नहीं होती, नॉन टॉक्सिक होता है, एंड इट इज टेस्टलेस। ओके, इट डज नॉट हैव एनी टेस्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विथ एल्कली मेटल्स? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको एल्कली मेटल के साथ हमने प्लेस किया है? फ्रांसियम, हाइड्रोजन, रुबीडियम, सीजियम। यस, कौन सा नॉन मेटल है जो एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस्ड है? यस, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन नॉन मेटल है एंड इट इज प्लेस्ड विद द एल्कली मेटल्स। ओके, नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन लार्ज स्केल? ओके, तो ये देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, ठीक है, किस मेथड से हम हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं? Filtration, evaporation, fractional distillation and simple distillation. So the correct answer is fractional distillation. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए vacuum distillation, that is used when boiling point of compound is too high in order to distill the compound without significant decomposition. तो हम ये fractional distillation या vacuum distillation इसलिए use करते हैं when the boiling point of the compound is too high. Okay, so the correct answer for this is fractional distillation. Next, producer gas is mixture of which of the following? Okay, ये question exam में भी आ चुका है, ठीक है, कि जो producer gas है वो किसका mixture होता है? Yes, CO plus N2, CO2 plus H2, CO2 plus N2 or more than one of the above. तो करेक्ट आंसर है इसका CO plus N2. ओके, सो जो प्रोड्यूसर गैस है इट फॉर्म कोक्स, जिसमें कि 27% है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो 27% कार्बन मोनोऑक्साइड है, 12% हाइड्रोजन है, 0.5% मीथेन है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड नाइट्रोजन इज 55% बाय वॉल्यूम। ओके, so producer gas is actually the mixture of carbon monoxide and nitrogen gas. Okay, now next is, on heating a mixture of ammonium chloride, okay, and potassium nitrite, so NH4Cl and KNO2, what we will going to get? जब आप इन दोनों के मिक्सचर को हीट करते हैं, ओके, तो आपको क्या मिलता है? what is the result? yes, what we will going to get? Try. When you heat the mixture of NH4Cl and KNO2, what you will going to get? N2. Okay, so when you heat this, you produce a super stable nitrogen gas that is used for industrial purpose such as packaging. Okay, so we're going to get the nitrogen gas. Next question, you have to choose the incorrect statement. ठीक है, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस. Very pure nitrogen can be obtained by thermal decomposition of sodium or barium azide. Cryogenic distillation of air is the oldest method of nitrogen production. Nitrogen atom has 3 stable isotopes. Okay, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, जो इनकरेक्ट है.
करेक्ट आंसर है डी, नाइट्रोजन गैस हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स। ये गलत है, ठीक है, 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ओके। नाइट्रोजन के एक्चुअली 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ओके, N14 N15, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the defect in painting in which a formation of dull patches occurs on a finished polished surface। ओके, पेंटिंग के उस डिफेक्ट को बताइए क्या कहते हैं जिसमें कुछ डल पैचेस दिखने लगते हैं, ओके, ऑन अ फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस। सो फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस पे डल पैचेस दिखने लगते हैं। सो इज इट सैपोनिफिकेशन, ब्लूम, रिंकलिंग और फ्लेकिंग? यस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ब्लूम, ओके। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि फिनिश्ड पॉलिश सरफेस पे कुछ डल पैचेस अपीयर होते हैं, लाइक यू नो दे अकर, एंड दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन पेंट और इट कुड बी बैड वेंटिलेशन, ठीक है। या तो पेंट में डिफेक्ट है या इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ द बैड वेंटिलेशन, बट वो फिनिश्ड पॉलिश सरफेस पे भी कुछ डल पैचेस आ जाते हैं, उसे हम ब्लूम कहते हैं, राइट, दिस डिफेक्ट। Next question, the ingredient of paint which gives it the binding property and form opaque coating is? Yes. उस पेंट के इंग्रेडिएंट को हम क्या कहते हैं जिसमें कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है एंड इट फॉर्म्स ओपेक कोटिंग? व्हाट इज ओपेक कोटिंग? लाइक ओपेक मतलब ऐसा जिसके जिसके थ्रू कुछ विजिबल ना हो। जैसे आपको पता है 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिससे कि पूरी लाइट पास होती है, सो यू नो द like it is see-through, okay, you can look at the other side through it, transparent, okay, because all of the light passes through it। translucent में कुछ लाइट पास होती है, okay, तो उसमें partially visibility होती है to the other side, but opaque में क्या होता है, there is no visibility to the other side। तो ये जो opaque coating बनती है उसे हम क्या कहते हैं? yes, what is that opaque coating known as? तो इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। सो बेस ऑफ अ पेंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा पेंट के पहले बेस किया जाता है, राइट, तो उसमें पिगमेंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, ओके, जो कि उस पेंट को उसका कलर प्रोवाइड करते हैं एंड एबिलिटी टू अडेयर टू द सरफेस, ठीक है। तो पेंट उस सरफेस के साथ अडेयर करे, स्टिक रहे, ओके, तो उसके लिए ये बाइंडर्स यूज करते हैं, ओके। तो इस ओपेक कोटिंग को हम बेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश? ओके, इनमें से कौन सा है जो कि ड्यूरेबल है, ओके, वार्निश कौन सा है जो कि ड्यूरेबल है? ऑयल वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश, स्पिरिट वार्निश और वाटर वार्निश? यस, विच वन इज द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश? सो करेक्ट आंसर इसमें ए है, दैट इज ऑयल वार्निश, ओके। सो ऑयल वार्निशेस ड्राई स्लोली बट दे फॉर्म हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, ओके। तो जो ऑयल वार्निश होते हैं उन्हें टाइम लगता है ड्राई अप होने में, राइट, सो दे ड्राई स्लोली बट यू नो अल्टीमेटली व्हाट दे फॉर्म इज अ वेरी हार्ड एंड अ ड्यूरेबल सरफेस। तो जो मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश है दैट इज ऑयल वार्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पर्पज ऑफ यूजिंग व्हीकल कंपोनेंट्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग? पेंट मैन्युफैक्चरिंग में what is the purpose of using the vehicle components? To prevent shrinkage and cracking, to bring down the cost of paint, to spread the paint evenly, to modify the weight of paint? Yes. What is the purpose of vehicle components? So correct answer is to spread the paint evenly, ठीक है। तो yes, just a minute, there is some it should be A, okay, to prevent shrinkage and cracking, okay, to prevent shrinkage and cracking, so it should be A, not C, okay. So please just make this correction. So what is the purpose of using vehicle component in paint manufacturing? It is to prevent shrinkage and cracking, okay. Okay, now next is, which of the following is a vehicle
यूज्ड एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल पेंट्स. ओके, तो ऑयल पेंट्स में किस कंपोनेंट को हम यूज करते हैं, राइट? लाइक इट इज अ व्हीकल दैट इज यूज्ड एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल पेंट. तो ऑयल पेंट में व्हीकल का काम कौन करता है? इज इट लिंसीड ऑयल, स्पिरिट, पेंट थिनर और पेट्रोलियम जेली? यस. What should be the correct answer here? So the correct answer is linseed oil. Okay, so vehicle और drying oils होते हैं. Okay, ये ऐसे liquid होते हैं that bind the pigment to the surface. Okay, and protect pigment from decay. जैसे linseed oil है, hydrated castor oil है. ठीक है, तो vehicle का मतलब यहाँ पे drying oil से है. ठीक है, और ये vehicle या ये जो drying oils होते हैं, इनका काम होता है कि ये पिगमेंट को सरफेस से बाइंड करते हैं और पिगमेंट को डीके होने से, खराब होने से भी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, जैसे लिंसीड ऑयल. ओके, तो यहाँ व्हीकल का मतलब है ड्राइंग ऑयल. ओके, व्हीकल मीन्स ड्राइंग ऑयल. ओके, सो कैस्टर ऑयल भी है, लिंसीड ऑयल भी है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल इन पेंट? ओके, अब इसमें कौन सा व्हीकल यानी कौन सा ड्राइंग ऑयल नहीं है? लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, टार्पेंटाइन ऑयल? यस, इनमें से कौन सा व्हीकल या ड्राइंग ऑयल नहीं है पेंट में? तो ड्राइंग ऑयल का देखिए काम क्या होता है कि पिगमेंट को सरफेस से अडेयर करने का, कि वो स्टिक रहे उससे. ठीक है, और वो पिगमेंट डीके ना करे, खराब ना हो, तो इसलिए हम ये ड्राइंग ऑयल यूज करते हैं. सो विच इज नॉट अ ड्राइंग ऑयल हियर? करेक्ट आंसर है टार्पेंटाइन ऑयल. ओके, तो इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं. इसको जरूर याद रखिएगा कि इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि जो भी पेंट है, थिक पेंट है, ठीक है, अब हम उतने थिक पेंट को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते, तो उसकी थोड़ी थिकनेस कम करने के लिए, पेंट को थिन करने के लिए, सो दैट इट कैन बी इजिली अप्लाइड ऑन द सर्फेस, इस टार्पेंटाइन ऑयल, जिसको हम तारपीन का तेल भी कहते हैं इन हिंदी. ओके, सो वी यूज इट to make the coating of the paint thin. ठीक है, और for the thin coating of the paint. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप खुद सोचिए, जो पेंट आता है अपने थिक फॉर्म में है, ओके, तो हम उसे प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते सरफेस पे. उसको थोड़ा सा इजी रहे अप्लाई करने के लिए, इसलिए हम पेंट को थिन करते हैं. ठीक है, तो उसको थिन करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, राइट? सो इट विल गोइंग टू वर्क एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये व्हीकल नहीं है, ये ड्राइंग ऑयल नहीं है, ये सॉल्वेंट है. ये पेंट को थिन करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स द पेंट पेनिट्रेट थ्रू द पोरस सर्फेस. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पेंट इज अप्लाइड इन 3 कोट्स, द फर्स्ट कोट इज नोन एज. ओके, जब पेंट को अप्लाई किया जाता है, लाइक 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, सो व्हाट इज द फर्स्ट कोट नोन एज? पहले कोट को हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग, फिनिशिंग कोट, अंडर कोट और प्राइमिंग कोट? Yes, when paint is applied in 3 coats, the first coat is known as. Yes, what should be the answer? Yes, the first coat is known as प्राइमिंग कोट. ठीक है, जैसे प्राइमर आप सबने सुना होगा. व्हाट इज अ प्राइमर? तो जब हम पेंट अप्लाई करते हैं, सपोज 3 कोट में करें, तो जो पहली कोटिंग करते हैं उसको हम प्राइमिंग कोट कहते हैं. ठीक है, राइट? सो इट इज द फर्स्ट कोट ऑफ द पेंट दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सर्फेस. ओके, तो इसका काम क्या होता है? टू वेट द सर्फेस एंड प्रोवाइड गुड एडहेशन फॉर सब्सिक्वेंटली अप्लाइड कोट्स. ओके, तो पहला कोट जो होता है, इट इज नोन एज अ प्राइमिंग कोट, क्योंकि वो पहला कोट है दैट स्टिक टू द सर्फेस, और लाइक, और इसका काम क्या होता है? टू वेट द सर्फेस एज वेल एज कि फर्दर और कोट्स के लिए वो प्रॉपरली फर्दर जो कोट्स हैं वो स्टिक करें, प्रॉपर एडेशन मिले, गुड एडेशन मिले. तो इसीलिए दिस फर्स्ट कोट इज देयर. ओके, सो दैट इज प्राइमिंग कोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज.
ओके तो आपको बताना है जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें मैग्नीशिया की परमिसिबल लिमिट क्या होती है, 5%, 6%, 8% और 10%. Yes, what should be the answer for this? 6%, okay? So like it should not be more than 6, okay? So this is the permissible limit. Permissible limit means allowed limit कि इससे ज़्यादा मैग्नीशिया का कंटेंट पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होगा, okay? So the cement weight of magnesia that is not more than 6%, okay? Or 0.06, right? Next question. Water has its maximum density at, okay, तो आप सबने anomalous expansion of water सुना है, okay? तो water की maximum density किस temperature पे होती है, 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री और -4 डिग्री. Yes, water has its maximum density. करेक्ट आंसर है 4 डिग्री, ओके. डेंसिटी जो वाटर की है इट विल गोइंग टू इंक्रीज अंटिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 4, ओके. तो डेंसिटी पहले बढ़ती है जब तक टेम्परेचर 4 पे आता है. एट 4 क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिगिन टू फॉर्म एंड द डेंसिटी बिगिन टू डिक्रीज. तो 4 पे डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, तो मैक्सिमम डेंसिटी हमें पता है वी गेट एट 4 डिग्री, ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following substances dissolve in water?